Very good afternoon to one and all. It's our second lecture on vector calculus. That is our second lecture, and we comes on the next topic. In previous lecture, we have seen a directional derivative, how to get the directional derivative of any scalar point function along a given direction. And next topic, that is a divergence of a vector point function as well as a curl of a vector point function. Now, how we define a divergence of any vector point function? So, if f of f bar, that is a vector point function, and that f bar is defined as f1i plus f2j plus f3k is a vector point function, then how we define the divergence of that f bar? The divergence is denoted by that symbol div f of f bar, and how it is denoted by that symbol div f of f bar, and is defined as del dot of f bar. Now, how to calculate that del dot of f bar? That is called as a divergence of f bar. Now, del, we know that operator have the value I del by del x plus j del by del y plus k del by del z, and there is a dot product. So, dot of that f bar is nothing but we have defined here f1i plus f2j plus f3k. So, now how to take a dot product? We know that the dot product of two same vector is 1, otherwise it become a 0, and we know that I dot I is a 1, so del x of f1. So how is that? First value I dot I is a 1, so del x of f1, so we write here del x of f1. Then next is a plus j dot j is 1, so there is a del y of, here is a f2. Then plus third k dot k is a 1, so del z of f3, that is del z of f3. So in this way we can calculate the divergence of any vector point function. Symbolically it is written as del dot of f bar. So that is called as a divergence of any vector point function f bar. And there is some conditions that divergence of any vector is, if it is equals to 0, then that vector is called as a solenoidal vector. That is a particular name, that is a solenoidal vector. If v bar is a vector such that, if v bar is such a vector that del dot of v bar is equals to 0. अगर v bar ऐसा वेक्टर है कि उसका डाइवर्जेंस, when we calculate the divergence of that v bar and that should be equals to 0, then in that case then v bar is called as a solenoidal vector. Solenoidal vector. Now, how is that divergence defined? If you have to take examples of divergence of a vector, so that is a concept of actually physics when we consider the flow of the fluid. If you have seen, आप लोगों ने अगर वो फाउंटेन देखे होंगे, फाउंटेन, वाटर फाउंटेन, तो हमें पता है कि जब वाटर फाउंटेन रहते तो सभी डायरेक्शन में उस वाटर का फ्लो होता है, इन ऑल डायरेक्शंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जेंस ऑफ दैट फ्लूइड और दैट वेक्टर. अगर वहां पे फ्लो नहीं हो रहा है, दैट देयर इज नो डाइवर्जेंस ऑफ द फ्लूइड, मतलब क्या होगा कि वाटर जो है वो एक ही साइड से फ्लो होगा, सभी डायरेक्शन से फ्लो नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस दैट डाइवर्जेंस इज अ 0, एंड देन दैट वेक्टर, दैट एग्जांपल सपोज वी टेक, दैट इज कॉल्ड एज अ solenoidal vector. That concept is belongs to physics. So you just remember that if the divergence of any vector is equals to 0, then that is called as a solenoidal vector. ऐसे फॉर्म में divergence of any vector is define किया जाता है. And next we will see curl of a vector. So next is a curl of vector. Again, if we define here, suppose यहाँ पे अगेन वी कंसिडर द एफ बार हमें वेक्टर दिया है. अगेन वी डिफाइन इट एज f1i प्लस f2j प्लस f3k. देन हाउ टू डिफाइन द डाइवर्जेंस. कैसे डिफाइन किया जाता है? सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज del cross of f bar, that is called as a, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, इट इज कॉल्ड एज अ
curl of a curl curl of vector f bar. In short it is written as curl of f bar, जैसे हम div of f bar लिखते हैं. अब del cross of f bar, how we can write that del cross of f bar is equals to, अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रहता है so we have to take a determinant. फर्स्ट रो में रहेंगे अपने आई जे के, सेकंड रो में रहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के ऑफ दैट डेल. यहाँ पे डेल की क्या रहता है, आई जे के कोएफिशिएंट, दैट इज डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड. और थर्ड रो में रहेंगे आई जे के कोएफिशिएंट ऑफ दैट एफ बार. यहाँ पे एफ बार के आई जे के की जो कोएफिशिएंट है दैट इज f1 f2 f3. तो यहाँ पे आएंगे थर्ड रो में f1 f2 f3. ओके, अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये सभी को पता है. सो हाउ कैन राइट वी हियर, दैट इज आई इंटू, यहाँ पे क्या होगा, वी ओमिट दैट रो एंड दैट कॉलम. सो हियर इज अ डेल डेल y ऑफ f3 माइनस यहाँ पे होगा डेल डेल z ऑफ f. उसके बाद साइन रहेंगी हमारी माइनस, हम लगे तो आगे के स्टेप में लिखते हैं, माइनस ऑफ j. और यहाँ पे होगा अगेन वी कैन ओमिट दैट कॉलम एंड दैट रो. सो हियर इज अ डेल डेल x ऑफ f3 माइनस डेल डेल z ऑफ f1. okay, and then there is a plus sign, plus into third vector of that row k into, again we omit that row and the respective column of that k. और यहाँ पे क्या होगा, डेल डेल x ऑफ f2, that is डेल डेल x ऑफ f2 माइनस यहाँ पे होगा डेल डेल y ऑफ f1. और in this way we can calculate the del cross of f bar, that is nothing but a curl of f bar. And that curl of f bar we write in this way, we can write it in the form of determinant. पहले रो में रहते हैं आई जे के यूनिट वेक्टर, सेकंड रो में रहते हैं डेल के जो आई जे के कोएफिशिएंट है दैट इज डेल एक्स डेल वाई डेल जेड. और थर्ड रो में यहाँ पे एफ बार जो वेक्टर डिफाइन किया है उसके जो आई जे के ये यूनिट वेक्टर है उसके जो कोएफिशिएंट है दैट इज f1 f2 f3. और डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वी हैव टू सॉल्व दैट एंड देन वी कैलकुलेट डेल क्रॉस ऑफ एफ बार, दैट इज कर्ल ऑफ एफ बार. अब यहाँ पे भी कंडीशन रहती है कि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी आप लोगों को भी, कि अगर इफ v बार इज अ वेक्टर और ऐसा वेक्टर है v बार सच दैट कि उसका जो कर्ल है दैट इज डेल क्रॉस ऑफ v बार वो क्या है, जीरो है. दैट इज डेल क्रॉस ऑफ v बार, दैट इम्प्लाइज कर्ल ऑफ दैट v बार इज इक्वल्स टू जीरो. अगर ऐसे फॉर्म में वेक्टर आता है कि उसका कर्ल v बार या दैट वेक्टर कर्ल इज इक्वल्स टू जीरो, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज, देन v बार इज कॉल्ड एज irrotational vector, called as irrotational vector. So remember that thing. It is called as a irrotational vector. Now we have seen a two concept. One is a divergence of vector and second is a curl of vector. Divergence कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का हमने यहाँ पे देखा है, how we get that. Then again we see the curl of any vector, how to calculate, we have seen here. अगर divergence of any vector is equals to zero, then it is called as a solenoidal vector. It's a very important, बहुत सारे बार प्रॉब्लम ये आता है कि show that that vector is a solenoidal, that means you have to show divergence of that vector is equals to zero. वैसे ही अगर आपको पूछा गया है कि show that the curl of vector is equals to zero, that means you have to show it is a irrotational vector. And now we will see the problem solved. यहाँ पे तीन प्रॉब्लम मैंने लिखे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वी बार. यहाँ पे ये वेक्टर वी बार डिफाइन किया है, वी बार इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xy इंटू जे प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy इंटू के. अब हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है. यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि उसका आंसर आता है 4x. सो वी सी हाउ टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर. ये फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा. सो वी राइट दैट हियर वी कंसिडर डाइवर्जेंस, दैट इज
डी डॉट ऑफ वी बार। हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज डी डॉट ऑफ वी बार। डी डॉट ऑफ वी बार इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि डेल की वैल्यू क्या रहती है, ऑपरेटर डेल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। तो ये हो गया हमारा डेल, यहाँ पे डॉट। अब लिखेंगे हम वी बार। वी बार की वैल्यू हमें पता है कि क्या है हमारा वी बार, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xy जे प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy इंटू के, एंड हियर वी कंप्लीट दैट ब्रैकेट। तो ये तो हो गया हमारा वी बार, दैट इज आवर डेल डॉट। सो नाउ वन बाय वन वी टेक देयर डॉट प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि आई डॉट आई इज अ वन, सो यहाँ पे क्या होगा, डेल डेल एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, डेल डेल एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट। सो वी राइट हियर डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन प्लस नेक्स्ट जे डॉट जे इज अ वन, और बाकी के साथ अगर उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। सो हमें सिर्फ जो जहाँ पे सेम सेम जे जे है आया है के है यूनिट वेक्टर है, वहां पे ही डॉट प्रोडक्ट वन होगा। सो जे डॉट जे इज अ वन, सो यहाँ पे आ जाएगा डेल डेल वाई ऑफ 2xy, उसके बाद प्लस के डॉट के इज अगेन अ वन, सो डेल डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे करेंगे उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डेल डेल एक्स है, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y की टर्म वहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी। डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट यहाँ पे होगा 2x, और ये टर्म तो हमारी जीरो हो जाएंगी। उसके बाद डेल डेल y ऑफ y का डेरिवेटिव 1 होगा, बट उसके मल्टीप्लिकेशन में 2 है, 2x है, तो 2x एज इट इज रहेंगे और डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 प्लस नेक्स्ट है डेल डेल z ऑफ दैट टर्म। हमें पता है कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, और यहाँ पे भी x और y की टर्म है, z की कोई भी टर्म नहीं है, सो ऑब्वियसली डेल डेल z ऑफ दैट होल टर्म बिकम अ 0। तो ये हो गया 0। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है, सो दोनों मिला के हो गए 4x। सो फाइनली डेल डॉट ऑफ वी बार की वैल्यू क्या आ गई, यस इट इज अ 4x। So in this way we can calculate the divergence of any given vector. So इतने easy तो प्रॉब्लम आएंगी नहीं, पर related to that कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। So concept आपका अच्छे से समझने के लिए we have written that problem, and now we see the next problem। यहाँ पे दिया है कि prove that v bar is equals to x plus 3y plus y minus 3zj plus x minus 2zk is a solenoidal vector। अब सोलेनोइडल वेक्टर हमें दिखाना है, मतलब हमें क्या प्रूव दैट करना है कि डेल डॉट ऑफ वी बार इज इक्वल्स टू 0। हमें प्रूव करना है कि उसका जो हम डाइवर्जेंस ऑफ वी बार लेंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वी शो दैट वेक्टर इज अ सोलेनोइडल वेक्टर। अब ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए रखती हूँ, दैट इज फॉर योर होमवर्क। बहुत ही इजी है, सिंपली आपको उसका डाइवर्जेंस जैसे यहाँ पे हमने निकाला है, यू हैव टू फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वी बार। You have to show that del dot of v bar equals to 0. That means you have to show v bar as a solenoidal. Now we comes on the third problem. Here we are given that vector f bar and that vector as a solenoidal vector. अब solenoidal vector हमें दिया है f bar. That means we are given that del dot of f bar is equals to 0, and from that relation you have to find the value of p. P is given in that f bar. So we will continue with that problem जो हमें given है, फर्स्ट हूँ कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। What we are given that is a del dot of f bar equals to 0. Del dot of f bar equals to 0. So we write here value of del and f bar. We know that del is nothing but I del y del x plus j del by del y plus k del by del z. And here we write f dot of f bar, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं नीचे की लाइन में, यहाँ पे आ जाएगा f bar that is a 2x plus y I plus 3x minus 2zj then plus x plus pz into k, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट
कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, हमें पता है कि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा और के डॉट के ही 1 होगा। बाकी के जो प्रोडक्ट रहेंगे आई के साथ जे का या आई के साथ के का डॉट प्रोडक्ट इट बिकम अ 0. सो फर्स्ट आई डॉट आई it's a 1, so we have to take a del del x of 2x plus y. So we write in the next line that is del del x of 2x plus y. उसके बाद plus j dot j1. So here is a del del y of 3x minus 2z. उसके बाद k dot k is a 1, so we have to write here del del z of x plus pz. So in this way we take their dot product and we get that term. Now del del x of 2x plus y, that del del x means partial derivative with respect to x. तो यहाँ पे x की टर्म है x सिंपली, सो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में 2, सो 2 एज इट इज रहेगा. del del x of y इज अ कांस्टेंट व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा इसका रिजल्ट, दैट इज अ 2 into 1 प्लस 0, ये y का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस डेल डेल y ऑफ. अब अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे x की टर्म है और यहाँ पे z की टर्म है और डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हैं हम पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. अब अगर विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव और z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यस ऑब्वियसली इट बिकम अ 0 हो जाएगा. उसके बाद डेल डेल z, अब डेल डेल z ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू z है, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस डेल डेल z ऑफ z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और उसके साथ p है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डेल डेल z ऑफ z इज अ 1 into p, सो इट बिकम अ p. सो ऐसे फॉर्म में आ रही है हमारी टर्म यहाँ पे. और यहाँ पे इस साइड पे क्या है हमारे पास, डेल डॉट ऑफ एफ बार इज इक्वल्स टू 0. ये डेल डॉट ऑफ एफ बार की वैल्यू है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपली 2 प्लस 2 इंटू 1 है, तो यहाँ पे 2 प्लस p हो गया. बाकी तो सभी टर्म 0 है. ये हमने डेल डॉट ऑफ एफ बार की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो डेल डॉट ऑफ एफ बार इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू वी कैलकुलेट दैट इज अ 2 प्लस p. So finally what we get a p is equals to minus 2. We get p is equals to minus 2. कौन से रिलेशन से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, p is equals to minus 2. By that relation del dot of f bar is equals to 0. So we put here the del dot of f bar, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमने लिखा. फिर that gives that term is equals to 0, that implies 2 plus p is equals to 0, that means p is equals to minus. Okay, so in this way we calculate that. So now we comes on the next problem. Now students, we come on a second concept, that is a curl of a vector, that we have seen previously. We have seen the definition of curl of a vector, how to find the curl of vector, that is the del cross of vector. That is, suppose vector is a f bar, then del cross of f bar, that is called as a curl of f bar. And here there are some problems. Calculate the curl of vector f bar is equals to x y z I plus 3x square y j plus in bracket x z square minus y square z into k. यहाँ पे ये वेक्टर दिया है f bar and we have to find the curl of that vector. So first we write the curl of vector. हमें पता है कि उसको डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या रहता है, that is nothing but a del cross of f bar. और ये भी पता है हमें कि del cross of f bar हम कैसे फाइंड करते हैं. You have to take a determinant. डिटरमिनेंट में क्या रहेगा, सबसे पहले रो में रहते हैं आई जे के, दैट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन आई जे के. सेकंड रो में क्या रहेंगे, जो आई जे के कोएफिशिएंट ऑफ दैट इन डेल में आई जे के कोएफिशिएंट क्या रहते हैं, दैट इज अ डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड. उसके बाद थर्ड रो में रहेंगे जो आई जे के कोएफिशिएंट है, आई जे के यहाँ के कोएफिशिएंट जो है एफ बार की, यहाँ पे क्या है आई का कोएफिशिएंट दैट इज अ एक्स वाई जेड, यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट 3x स्क्वायर वाई और यहाँ पे के का कोएफिशिएंट दैट इज एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड. सो आई हैव रिटन दैट. अब आ जाते हैं आगे की तरफ, तो इजी रहेगा कि इस साइड से हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे डेल क्रॉस ऑफ एफ बार इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं. सो आई इंटू क्या होगा, eliminate the row and the column in which that I exist and here you have to take a cross product.
of that is del del y of that term minus del del z of that term. अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये तो सबको पता है. सो del del y ऑफ यहाँ पे क्या होगा x z स्क्वायर, थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम, ये भी पॉसिबल यहाँ से नहीं दिखेंगे. सो डेल क्रॉस ऑफ एफ बार इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा i इंटू इन ब्रैकेट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो डेल डेल y ऑफ देयर इज अ x z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, इसके बाद माइनस ऑफ यहाँ पे होगा डेल डेल z ऑफ देयर इज अ 3x स्क्वायर y. यहाँ पे हम ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे. उसके बाद नेक्स्ट टर्म की तरफ आएंगे. अब जब सेकंड टर्म लेंगे तो यहाँ पे साइन आती है हमारी माइनस ऑफ j. अब जब माइनस j रहेगा तो यहाँ पे again we have to eliminate that row and that column in which that j exists and then take a cross product del del x of that term minus del del z of that term. So here is a del del x, इसका रहेगा that is a x z square minus y square z, then minus of del del z of that term x y z. Here is a bracket complete and then the plus third term, so plus k into यहाँ पे क्या होगा plus k into again the eliminate row and the column in which k exists, and here we take a cross product that is del del x of that minus del del y of that term. तो यहाँ पे आ जाएगा del del x of 3x square y minus del del y of x y z. Here is a bracket complete and then we write here del cross of f bar is equals to I into in bracket. अब del del y of यहाँ पे अगर कंसीडर करेंगे देखेंगे हम तो यहाँ पे टर्म है x z स्क्वायर और हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये टर्म तो हो गई हमारी जीरो. तो यहाँ पे ये तो जीरो हो गई माइनस del del y ऑफ y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y इंटू दैट z, सो 2y इंटू z माइनस. अब सेकंड टर्म की तरफ जाते हैं हम, यहाँ पे डेल डेल z ऑफ 3x स्क्वायर y. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई z की टर्म नहीं है, सो डेल डेल z विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जीरो. उसके बाद नेक्स्ट माइनस अब j, इसके आगे की टर्म डेल डेल x ऑफ यहाँ पे x की टर्म है एक, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज अ 1, हियर इज अ z स्क्वायर माइनस डेल डेल x ऑफ दैट टर्म इट बिकम अ जीरो, then minus of del del z of that term, del del z of z is a 1 into x y, so here is only x y bracket complete plus k लगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे ले लेते हैं यहाँ पे. अब प्लस k यहाँ पे अगेन फिर से del del x of that term, यहाँ पे x की टर्म है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x into 3 it become a 6x into that y, so it become a 6xy माइनस अब आगे डेल डेल y ऑफ दैट y का डेरिवेटिव 1, सो 1 into that xz, so it become a xz. अब इसको करते थोड़ा सिंप्लीफाई, सो दैट गिव्स डेल क्रॉस ऑफ f बार इज इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा सिंपली माइनस 2yz इंटू i, यहाँ पे क्या आ जाएगा z स्क्वायर माइनस xy, सो माइनस ऑफ j और we can write after the j here is a z square minus xy into j और लास्ट में आ जाएगा हमारा प्लस यहाँ पे होगा 6xy माइनस xz इंटू, अगर तो ये टर्म हम नीचे लिख लेते मे भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे प्लस k 6xy माइनस xz. Okay, so in this way we get the del cross of that vector f bar and that is nothing but a curl of f bar. So hope you understand that problem. Now we student come on the second problem. Here is a v bar is equals to xi plus yj plus zk upon under root of x square plus y square plus z square. तो ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में है, सभी को कॉमन है, सो आई हैव रिटन इन दिस वे. वी हैव टेकन दैट टर्म आउट ऑफ द ब्रैकेट एंड हियर इज इन
xi plus yj plus zk. So how we write the del cross of v bar हम कैसे लिखेंगे? अब अगेन द सेम डिटर्मिनेंट. फर्स्ट इसमें रहेंगे ij के रो में, सेकंड रो में डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और थर्ड रो में जो यहाँ पे वेक्टर है उसके जो आई जे के जो कोएफिशिएंट है. अब यहाँ पे ये टर्म तो कांस्टेंट है और सभी को कॉमन है, सो ये कॉमन निकल के हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? आई का कोएफिशिएंट हियर इज एक्स, देन जे का कोएफिशिएंट वाई एंड देन के का कोएफिशिएंट जेड. सो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान में आ गया होगा ये. और यहाँ पे √ऑफ ये टर्म एज इट इज रहेंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे. सो आई इंटू क्या होगा? अब यहाँ पे ये रो और ये कॉलम नहीं लेंगे, सो डेल डेल वाई ऑफ जेड, दैट इज डेल डेल वाई ऑफ जेड माइनस नेक्स्ट यहाँ पे होगा डेल डेल जेड ऑफ वाई, ये ब्रैकेट कंप्लीट, देन माइनस ऑफ जे. यहाँ पे क्या होगा? जे लेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ के डेल डेल एक्स ऑफ जेड, दैट इज डेल डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल डेल जेड ऑफ एक्स. उसके बाद प्लस के इंटू क्या होगा यहाँ पे? के इंटू डेल डेल एक्स ऑफ वाई, सॉरी डेल डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल डेल वाई ऑफ एक्स. सो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे. इक्वल्स टू, सो यहाँ पे तो ये टर्म √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है. अब थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो क्या दिख रहा है हमें? डेल डेल वाई ऑफ जेड, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, पर यहाँ पे जेड है तो ये टर्म जीरो हो जाएंगे. डेल डेल जेड ऑफ वाई, अब डेरिवेटिव हम y का निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z, y तो कांस्टेंट है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया. डेल डेल x ऑफ z, इसका भी जीरो होगा क्योंकि z है यहाँ पे. डेल डेल z ऑफ x, ये भी जीरो होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, और जब z के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पे भी डेल डेल x ऑफ y, ये भी जीरो हो जाएगा, और डेल डेल y ऑफ x, ये भी जीरो, बिकॉज वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दैट x विथ रिस्पेक्ट टू y, सो दैट ऑल टर्म बिकम अ जीरो. अब सभी टर्म अगर जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब जीरो इंटू समथिंग इट बिकम अ जीरो, और फाइनली क्या हो जाएगा? दैट इज अ डेल क्रॉस ऑफ v बार, और आई कैन राइट ऑन दैट साइड हियर. सो दैट डेल क्रॉस ऑफ v बार इज इक्वल्स टू दैट टर्म. ये हमने कैलकुलेट किया तो सभी की वैल्यू जीरो आ रही है, सो जीरो इंटू समथिंग इट बिकम अ जीरो. So what we get, that is del cross of v bar is equals to 0. अब अगर del cross of v bar 0 आ रहा है मतलब क्या हो गया? So obviously v bar is a, yes, it is a irrotational vector. अगर उसका curl of that vector is a 0, so that vector is a irrotational vector and therefore v bar is irrotational vector. So remember that thing, when the curl of any vector is a 0, that vector is a irrotational vector. When the divergence of any vector is a 0, then that is a, yes, solenoidal vector. So remember that both concepts, it's a very important. There are lots of problems on that. Now again we will see one more problem on that irrotational vector. So one more problem is here. Vector r bar is defined as r bar is equals to xi plus yj plus zk. We have given mod of r bar is equals to r, then we have to prove the vector r raised to n into r bar is a irrotational. अब r raised to n into r bar irrotational दिखाना है मतलब, yes, that means we have to show that del cross of that r raised to n r bar is equals to 0. r bar यहाँ पे दिया है हमें, और mod of r bar is equals to r. तो हमें पता है कि mod of r bar की वैल्यू क्या होगी? from that is the modulus, that is x square plus y square plus z square. जो i j k यहाँ पे जो इसके कोएफिशिएंट रहेंगे, then we have to take under root of their square, that is x square plus y square plus z square. अब मॉड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं ये सभी को पता है. that means it can be written as x square plus y square plus z square raised to the power 1/2 हो जाएगा ये. अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे r raised to n दिया है. अब r raised to
n, that means you have to take a power on apply the power n on both side. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ पे r की ये वैल्यू है. अब अगर r को हमने पावर n अप्लाई कर दिया तो इस साइड भी n आ जाएगा. So it gives a n by 2 here. So r raised to n is equals to that. Now you have to consider the vector r raised to n into r bar. अब दोनों को प्रोडक्ट लेना है हमें. तो ये टर्म एज इट इज रहेंगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू n by 2 इंटू दैट r bar. r bar इज नथिंग बट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड. ओके, अब इनका प्रोडक्ट लेंगे हम तो क्या होगा. सो फर्स्ट टर्म इंटू दैट, सो इट गिव्स, या ऐसे भी रखा हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो r raised to n into r bar इज इक्वल्स टू दैट. या फिर एक आपको स्टेप लगती है तो ज़्यादा कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझने में इजी. n by 2 इंटू दैट एक्स आई प्लस सेकंड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई जे प्लस थर्ड एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक ध्यान रखो कि ये स्केलर फंक्शन है और ये वेक्टर टर्म है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है. तो दोनों को प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा. फर्स्ट टर्म इंटू दैट एक्स आई प्लस सेकंड टर्म इंटू दैट टर्म इंटू प्लस वाई जे दैट टर्म प्लस इंटू जेड के. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड के हो गया ये. अब तो ये तो हो गया हमारा आर रेज़ टू एन आर बार. अब हमें क्या निकालना है, यू हैव टू शो दैट वेक्टर इज इक्वल्स टू इरोटेशनल. दैट मींस वी हैव टू प्रूव, व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट डेल क्रॉस ऑफ r रेज़ टू n इनटू r बार इज इक्वल्स टू 0. ये हमें प्रूव करना है. वी राइट दैट डेल क्रॉस ऑफ r रेज़ टू n इनटू r बार. अब और हमें डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं. प्रॉब्लम बहुत ही इजी है. यहाँ पे फर्स्ट इसमें आई जे के रहेंगे रो में, सेकंड इसमें डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड. अब थर्ड इसमें क्या रहेंगे, जो वेक्टर है यहाँ पे हम उस वेक्टर में जो आई जे के जो कोएफिशिएंट रहते हैं, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट ये टर्म है, यहाँ पे ये है जे का, यहाँ पे ये है. सो वी राइट दैट. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक टर्म में ये टर्म क्या है, कॉमन है. तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं एज इट इज अ कॉमन टर्म. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे दैट इज अ, यहाँ पे क्या होगा ये, यू टेक दैट टर्म कॉमन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर n by 2. अब यहाँ पे रहेगा क्या, सिंपली आई जी की कोएफिशिएंट आई एक्स रहेगा यहाँ पे, सेकंड इसमें सिंपली y रहेगा और थर्ड इसमें सिंपली z रहेगा. ओके, सो अभी जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम हमने देखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे रेज़ टू द पावर n by 2. और अभी हमने प्रीवियस जो प्रॉब्लम किया है कि हमें पता है ये डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है. फिर भी हम एक बार यहाँ पे कर लेंगे आपके लिए समझने के लिए. सो आई का रो और कॉलम नहीं लेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. सो आई इंटू यहाँ पे हो जाएगा डेल डेल वाई जेड माइनस डेल डेल जेड वाई. उसके बाद माइनस ऑफ जे, यहाँ पे क्या होगा, जे लेंगे तो ये कॉलम और रो छोड़ के डेल डेल एक्स जेड माइनस डेल डेल जेड एक्स. उसके बाद प्लस के और आगे क्या आ जाएगा, आगे ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा. डेल डेल एक्स वाई माइनस डेल डेल वाई एक्स. सो फाइनली व्हाट वी गेट, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर n by 2. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डेल वाई ऑफ जेड 0 हो जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई है. डेल डेल जेड वाई 0 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड है और यहाँ पे वाई है. यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी होगा बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ दैट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो सभी टर्म क्या होने वाली है, 0 होने वाली है. अब ये 0 इंटू दैट टर्म बिकम 0 और फाइनली व्हाट वी गेट, डेल क्रॉस ऑफ r रेज़ टू n इंटू r बार इज इक्वल्स टू 0. ये 0 है मतलब क्या हो गया, यस
That means we have proved. Therefore, what we prove? Therefore, r raised to n into r bar is irrotational vector. That is a irrotational vector as its curl of that vector is a 0. अब एक प्रॉब्लम आपके लिए मैं होमवर्क को दूंगी. So see that. Now student, this problem is for your homework. Again the same condition that vector r is defined in this form, xi plus yj plus zk और mod of that is equals to r. और यहाँ पे हमें क्या दिया है? That vector r raised to n into r bar is a सोलेनॉइडल. सोलेनॉइडल दिया है मतलब what we have given del dot of r raised to n into r bar is equals to 0. ये रिलेशन हमारे पास है and from that relation what you have to find? You have to find the value of n. ये जो n है you have to find the value of n. और ये आप सिंप्लीफाई जब करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है. जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने इसकी वैल्यू निकाली है वही वैल्यू रहेंगी यहाँ पे जो हमने निकाली थी. तो ये वैल्यू आपको लेनी है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल डॉट ऑफ दैट एंड देन दैट इज इक्वल्स टू 0 है, वो रिलेशन यूज करना है एंड फ्रॉम दैट रिलेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है दैट शुड बी इक्वल्स टू -3. ये आपको प्रूव करना है. उसके बाद फाइंड द कर्ल ऑफ वेक्टर. ये भी एक इजी प्रॉब्लम है. यहाँ पे वेक्टर दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द कर्ल ऑफ वेक्टर. और कैसे निकालना है आप सभी को पता है कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर हाउ टू यू कैलकुलेट. आंसर भी उसका मैंने प्रोवाइड किया. सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट पार्ट एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.